بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں میری ہی طرح کے کئی بچے جو کہ لگ بھگ میرے ہی ہم عمر ہوں گے وہاں پر رہتے ہوئے نظر آئے۔ ہم سب بچے وہاں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ہر کمرے میں 4 بیڈ تھے۔ اس حساب سے 4 بچے ایک کمرے میں رہتے۔ جو عقل اور شعور آتا گیا تو مجھے احساس ہوتا گیا کہ یہ جگہ ایک ایسا مکان ہے جہاں یتیم اور بے سہارا بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے اور اپنے عزیز و اقارب کی تنگ دلی کی بدولت وہ بچہ یہاں تک پہنچایا گیا تو کسی والدین کو اولاد ایک بوجھ کی طرح لگتی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہمیشہ کے لیے خلاصی حاصل کرنے کے لیے ان معصوم بچوں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کرتے۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ دنیا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، ان کو زندہ بھی رکھتی ہے یا پھر روند کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں آئے ہوئے ہر بچے کی ایک الگ کہانی تھی، ایک الگ داستان تھی۔ یہ عمارت جس کو یتیم خانے کے نام سے سب جانتے تھے، یہ ایک بہت ہی قدیم ترین عمارت تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ تقریباً 100 سال پرانی عمارت تھی، جو کہ ایک سچ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ کافی زمانے کے لوگ اس یتیم خانے کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمارت قدیم ہونے کے ساتھ پراسرار بھی تھی۔ کچھ بتاتے تھے کہ اس عمارت کو 1000 سال پرانے قبرستان کے اوپر بنایا گیا تھا۔ جب اس کو بنانے کا ارادہ کیا گیا کہ اتنے قدیم قبرستان کو مسمار نہیں کیا جائے، یہ عمارت کہیں اور بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو اس عمارت کی تعمیر کروا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جگہ کو خرید چکے تھے حکومت سے، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ کچھ عرصے میں ہی اس قبرستان کے اوپر انہوں نے وسیع اور بلند رقبے پر عمارت بنوا دی تھی، جس کو یتیموں کے نام سے جانا جانے لگا۔ شروع میں تو لوگ اس عمارت کا رخ کرنے سے خوف کھاتے، کیونکہ یہ قبرستان کے اوپر تعمیر کی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس بات کو بھلا دیا کہ اس عمارت کا اس قبرستان سے کوئی تعلق تھا۔ پھر زمانہ گزرتا چلا گیا اور لوگ بھولتے گئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ عمارت آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس یتیم خانے کا ایک اصول تھا کہ جو صدیوں سے چلا رہا تھا، اس اصول میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا تھا، اور اسی اصول نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میری زندگی کو ایک ایسا بھیانک موڑ دے دیا کہ میں اپنے دنیا میں اکیلے رہ جانے اور یتیم کہلائے جانے پر افسوس کرنے لگی۔ کاش کہ مجھے پیدا کرنے والے والدین مجھے بوجھ نہ سمجھتے اور اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں، خواہ وہ کوئی اسٹور روم ہی کیوں نہ ہوتا، وہاں پر رکھ لیتے، لیکن اس بے رحم اور ظالم دنیا کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑتے، کیونکہ اس دنیا میں بظاہر تو لوگ انسان لگتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں ایسے بھیڑیے موجود ہیں جو ہم جیسے یتیموں اور لاوارث بچوں کو نوچ کھانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں ایسے خوفناک اور بھیانک واقعات دیکھے اور سہے کہ جن کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مجھے بھی لوگوں کی ان غلیظ نظروں سے بچنے کی خاطر اس یتیم خانے کو اپنا مسکن بنانا پڑا، اور تمام تکالیف سہتے ہوئے بھی میں کہیں اور نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میری اس یتیم خانے کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ میرے والدین نے بھی مجھے پیدا ہوتے ہی اس پر اسرار عمارت میں لا کر چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے میرے وجود سے غافل ہوئے، جیسے کہ میں ان کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہ ہوں۔ وہ در حقیقت دردناک اصول جو اس عمارت میں 100 سالوں سے چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کئی ایسے مناظر دیکھے جو مجھے آج بھی یاد کر کے خوفزدہ کرتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ہر بچے کو اس عمارت کی انتظامیہ کی طرف سے خوراک اور پہننے اوڑھنے کے تمام اخراجات میں لے جاتے تھے، یعنی یہ یتیم خانہ ہر بچے کی کفالت کرتا تھا، اس کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کا بندوبست مفت کرتا، لیکن یہ عنایت صرف اور صرف اس بچے کے 18 سال کے ہونے تک موجود تھی، اور اس بچے کی 18ویں سالگرہ کے بعد آزاد کر دیا جاتا اسے۔ وہ اب اپنا خرچہ خود اٹھاتا، اس کے بعد اس یتیم خانے کا ذمہ اس کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور اسے یہ عمارت چھوڑ کر جانی پڑتی تھی۔ اس طرح سے یہ اصول اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہر سال نئے آنے والے یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے اس یتیم خانے میں گنجائش پیدا کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ان بچوں کا نہیں سوچتا جو اس عمارت سے بے گھر کر دیے جاتے۔ 18 سال کی عمر کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی،
کہ مجھ جیسی تنہا اور لاوارث لڑکی اس ظالم دنیا میں اکیلے گزارا کر سکتی۔ اس دنیا کے ظالم لوگ مجھے نوچنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ ہر کوئی سی طاق میں ہوتا کہ کب اس کو اس کا شکار ملے اور وہ اسے نوچ کھائے۔ جب میں 18 سال کی نہیں ہوئی تھی تو اس عمارت میں گزارا گیا وقت بہت عجیب تھا۔ مجھے کبھی کبھی وہ یتیم خانہ بہت پراسرار لگتا، اور میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے جن سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ سالوں پہلے جو خبریں ملتی تھی اور ان لوگوں کی زبانوں پر گردش کرتی تھی وہ حقیقت میں ایک بھیانک سچ تھا۔ میں کسی صورت ان سب واقعات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہ پراسرار سی عمارت میں نے 14 سال کی عمر سے ہی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ یہاں کچھ تو عجیب تھا۔ اس یتیم خانے میں بھی ہم بچوں نے کوئی شاہانہ زندگی نہیں گزاری تھی۔ یہ لوگ صرف 18 سال کے ہونے پر ہی خوراک دینا بند نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی بچہ ذرا سی بھی شرارت کرتا، خواہ اس سے کسی کو نقصان نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس بچے کو پورا دن بھوکا رکھتے۔ اس بچے کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کچھ بھی کھانے کے لیے سوال کرے، ورنہ یہ سزا بڑھ بھی سکتی تھی۔ خالی اس پر ہی بس نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس بچے کو اس رات کمرے میں بستر پر سونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس معصوم بچے کو اس کی ذرا سی شرارت اس قدر مہنگی پڑ جاتی کہ پورا دن بھوکا رہنے کے ساتھ اس کو رات بھی باہر صحن میں گزارنی پڑتی۔ چلو بھوکا رہ کر تو کسی نہ کسی طرح صبر آ جاتا، لیکن رات کو اندھیرے میں اس پورے اسرار سے صحن میں پوری رات گزارنا کس قدر خوفناک ثابت ہوتا، یہ شاید بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسا ہی ایک دفعہ یہ سزا میں نے بھی کاٹی تھی، اور بس اتنی سی وجہ تھی کہ میں اپنے بستر کے نیچے تھوڑا سا کچرا غلطی سے چھوڑ چکی تھی، اور وہاں ہماری وارڈن نے وہ کچرا دیکھ لیا اور اوپر انتظامیہ کو شکایت لگا ڈالی، جس کے نتیجے میں مجھے اگلا پورا دن کچھ نہیں کھانے کو دیا گیا۔ میں بھوک سے بےحال ہو چکی تھی۔ دن تو سارا جیسے تیسے کر کے گزر گیا، لیکن جب رات کا وقت قریب آنے لگا تو میرا خوف بڑھنے لگا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور ڈر میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اس صحن میں بہت اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ وہاں رات کے وقت کوئی روشنی نہیں ہوتی، ایک واحد ذریعہ جو روشنی کا تھا جس سے ہلکا ہلکا انسان کو بس اپنا ہیورا نظر آتا۔ میں نے وہاں جانے کے خیال سے ہی کانپنا شروع کر دیا۔ اب تک جتنے بچوں کو سزا دی گئی تھی سب کے سب بہت خوفزدہ ہو جاتے۔ اب جب باری میری تھی تو میں کانپنے لگی کہ اگر وہاں پر کوئی سایہ ہوا تو میں کیا کروں گی، کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جس سے اپنا غم بیان کر سکوں اور ڈر پر قابو پا سکوں۔ بالآخر مجھے اس پراسرار صحن میں آنا پڑا۔ وہاں آتے ہی ہر طرف میں نے بہت سناٹا محسوس کیا جو کافی عجیب تھا۔ میں آہستہ آہستہ صحن میں چلنے لگی اور سوچنے لگی کہ کیسے اس اندھیری رات میں کھلے آسمان کے نیچے اور پراسرار صحن میں ساری رات بسر کروں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہے جو میرے پیچھے چل رہا ہو۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے میں ڈرتے ڈرتے جو ہی پیچھے مڑی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ ایک کالی سیاہ بلی تھی۔ وہ بلی رات کے اندھیرے میں بہت مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت پراسرار تھا۔ ایک آنکھ بالکل سرخ تھی جبکہ دوسری اس اندھیرے میں زرد رنگ کی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے بہت خوف آیا اس بلی سے۔ مجھے وہ کوئی عام بلی نہیں لگی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے وہ میری طرف قدم بڑھا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ خوف سے میری دھڑکن رک جائے گی۔ میں نے اپنے قدم پیچھے لینا شروع کر دیے۔ اچانک پیچھے کوئی پتھر پڑا تھا جس پر میرا بے دھیانی میں پیر آ گیا۔ میں دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ میری ایک دم خوف سے چیخیں نکل گئی۔ وہ بلی آہستہ آہستہ میرے قریب سے گزر کر چلی گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک درخت پر چڑھ چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس درخت کے اوپر سرخ رنگ کے سیب لٹکے نظر آ رہے تھے۔ وہ سیب دکھنے میں کافی رسیلے لگتے، لیکن کہتے نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس طرح یہ سیب بھی کوئی عام سیب نہیں تھا۔ اس قبرستان کو مسمار کی گئی عمارت میں موجود ایک انتہائی پراسرار صحن میں موجود سیب کا درخت تھا۔ کاش کہ میں اس سیب کو حسرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھتی، تو اس درخت پر موجود وہ پراسرار سایہ میری نگاہوں کی حسرت دیکھ کر سیب نہ پھینکتا۔ میں بھی اس ٹھوکر کے لگنے کے بعد اچانک اٹھ کر سیبوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ درخت خود بخود زور سے ہلنے لگا۔ ایسے لگا کوئی طاقت اندیکھی ہے اس درخت کو ہلاتی جا رہی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔
अचानक उस दरख्त से बहुत सारे सुर्ख रंग के रसीले सेब ज़मीन पर गिरने लगे। मैं हैरत से उन सेबों को देख रही थी। आज तक मैंने ऐसे सेब कभी नहीं देखे थे। वो आम सेबों से बहुत बड़े और इंतहाई सुर्ख थे। दिखने में इतने रसीले थे कि बेसाख्ता मुंह में पानी आ गया। मेरा दिल चाहा कि मैं एक दो सेब खा लूं, लेकिन वो दरख्त का खुद ब खुद हिलना याद आते ही मैं खौफज़दा हो गई। मैंने वो सेब खाने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन आखिर कब तक ऐसा मुमकिन था? मैं जो सारे दिन की भूखी प्यासी सज़ा में अपना दिन गुजार चुकी थी, अब जब नज़रों के सामने इतने सुर्ख और रसीले सेब दिखाई दिए तो मैं खाने के लिए बेचैन हो गई। आखिरकार मैंने एक सेब डरते डरते हाथ में लिया। वो एक ही सेब इस कदर बड़ा था कि मेरे दोनों हाथों में आता। मैंने सोचा मेरी भूख मिटाने के लिए एक ही काफ़ी है, उसको जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये इमारत और उसमें मौजूद हर चीज़ आम नहीं थी। यहाँ सब कुछ पुरस्कार था। कुछ अनदेखा एहसास था जो हर वक्त यहाँ वहाँ भटकता रहता। काश कि मैं वो सेब ना खाती तो अपनी ज़िंदगी में इस खौफ और दहशत भरे वाक़यात से ना गुजरती। उस सेब को खाने के बाद मुझे वो एहसास और किसी की मौजूदगी हर वक्त महसूस होती। मैं अक्सर खौफ में ही रहती कि ऐसा क्या है जो हर वक्त मेरे साथ होता है, वो भी साए की तरह। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस रात भूख की हालत में खाए गए उस अजीब सेब के बाद उस इमारत में मौजूद 100 साल पुराना जिन, जो न जाने कब से इस कब्रिस्तान में मौजूद था, मेरे साथ एक साए की तरह रहने लगा। उस जिन ने कभी मेरे सामने आने की कोशिश नहीं की और ना कभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि मैं जहाँ जाती वो जिन उधर ही मौजूद होता। उसी पुरस्कार एहसास के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और मेरी ज़िंदगी का एक और साल गुजर गया। यानी मैं 15 साल की हो चुकी थी। हमारे उस यतीम खाने के चौकीदार के मुतालिक मैंने अपनी सहेली, जो कि मेरे साथ ही कमरे में रहती थी, मेरी ही तरह वो भी वालिदैन के होते हुए भी एक बोझ की तरह यतीम खाने में फेंक दी गई थी, जिसको उसके वालिदैन ने आज तक पलट कर नहीं देखा था और ना ये दरियाफ्त किया था कि वो जिंदा थी या मर चुकी थी। एक जैसा दुख होने की वजह से हमारी दोस्ती भी बहुत गहरी थी। हर बात एक दूसरे से करते और एक दूसरे के साथ हर खुशी हर गम को बांट कर जीते। उस अजीज सहेली ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिन से इस यतीम खाने का चौकीदार किसी न किसी बहाने से इमारत के उस हिस्से में चला आता जहां हम लड़कियां खेलती थी और अजीबोगरीब तरीके से देखा करता। उसने मजीद बताया कि उसको उस चौकीदार की नज़रें बहुत गलीज लगती थी। इस मुआशरे में अकेले और तन्हा ज़िंदगी गुजारते हुए हम लड़कियों को बहुत कम उम्री में समझ आने लगी थी कि कौन किस नज़र से देखता है। ज़माने की तलखियाँ और सख्तियाँ हमें इतना हसास और बाशऊर बना देती हैं कि हमें लोगों की हम यतीमों और लावारिस बच्चियों को लेकर नज़रें बहुत कुछ समझा देती हैं। मेरी सहेली बहुत खौफज़दा रहने लगी। उसको नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि वो चौकीदार यहाँ ना आया करे और सब बच्चियाँ उसकी हवस भरी नज़रों से बची रह सके। हर इज़्ज़तदार और हयादार लड़की की तरह मेरी सहेली और मुझे भी अपनी और अपनी साथी लड़कियों की इज़्ज़त अजीज़ थी। अभी मेरी सहेली मुझे चौकीदार के मुतालिक और उसके गलीज़ और मकरूह नज़रों के बारे में बता ही रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे कुछ गिरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही और अचानक ही खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। उस तरफ वही काली स्याह रंग की बिल्ली थी जो दिखने में बहुत खौफनाक लगती, क्योंकि उसकी एक आंख सुर्ख रंग की थी और एक आंख का रंग जर्द था। वो अचानक उस दीवार को फलांग कर दूसरी जानिब चली गई। उस पुरस्कार बिल्ली ने मुझे 1 साल पहले हुए सहन में वाक़े की याद दिला दी, जब उस रात वो सेब का दरख्त खुद ब खुद हिलने लगा था। बहुत सारे सेब वहाँ गिरने लग गए थे। उन्हीं दिनों की बात थी कि कुछ अरसे बाद मेरा उस सहन से गुजर हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, ये जानकर कि वहाँ सेब का कोई दरख्त था ही नहीं। मुझे लगा कि शायद किसी वजह से उस दरख्त को कटवा दिया गया हो, लेकिन किसी से पूछने पर मालूम हुआ कि उस जगह पर ऐसा कोई दरख्त मौजूद था ही नहीं। वहाँ उन्होंने जानबूझकर कोई फलदार दरख्त नहीं उगाया था, क्योंकि उस पुरस्कार सहन को उन्होंने बच्चों को सजा देने के लिए मुख्तस किया था। अगर ऐसा कोई दरख्त होता तो बच्चे अपने लिए फल तोड़ सकते थे, जो कि गलत था। मैं तो सिर्फ इस हकीकत को जानकर ही डर से कांपने लगी थी कि अगर वहाँ कोई दरख्त नहीं था तो उस दिन कैसे आ गया, और वो सेब जो मैंने खाया था वो कहाँ से आया। वो सब मेरा वहम तो हरगिज़ नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से आज भी वो सब याद है।
उस वाक़े का जिक्र मैंने अपनी सहेली से किया, मगर उसने भी मजाक में बात टाल दी। उसका कहना था कि ये सब यकीनन मेरा कोई वहम होगा, या हो सकता है कि वहाँ पर मेरी आँख लग गई हो, भूख लगने की वजह से मैंने ऐसा ख्वाब देखा हो। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन मुझे वो हकीकत ही मालूम होती। इसके साथ वो पुरस्कार बिल्ली जो मुझे आज दोबारा नजर आई थी, वो भी तो उस रात थी। लेकिन अफसोस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था और क्यों। कुछ दिन बाद की बात थी कि एक रोज़ मैं कमरे से बाहर चहलकदमी कर रही थी। मेरी सहेली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो मेरे साथ नहीं आ सकी, लिहाजा मैं अकेले ही वॉक करते उस यतीम खाने की इमारत के उसी गोशे की तरफ आ गई, जहाँ पर मुझे मेरी सहेली ने उसी चौकीदार का वाक़या सुनाया। और वो घटिया आदमी जहाँ आकर बहाने बहाने से मासूम लड़कियों पर अपनी गलीज नज़रें डालकर उनको खौफ व हरास में मुब्तला कर देता। मैं यहाँ अनजाने में ही आ गई थी, वरना मुझे उस गोशे से खौफ आने लगा। हालांकि वहाँ उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जब से उस पुरस्कार बिल्ली को यहाँ एक मर्तबा देखा तो दिल में एक अजीब तरह की कपकपी तारी हो जाती। अभी मैं वहाँ से जाने का सोच रही थी कि अचानक मेरी नज़र दिल दहला देने वाले मंजर की तरफ गई। मैंने देखा वही घटिया चौकीदार ज़मीन पर लेटा हुआ था। कोई अनदेखी ताकत उसको घसीट कर गोल गोल घुमाती हवा में उछाल कर अचानक ज़ोरदार तरीके से ज़मीन पर पटक रही थी। उस मंजर को देखते ही मैं खौफ से कांपने लगी और हद दर्जा खौफज़दा हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। ऐसी कौन सी ताकत थी जो उस चौकीदार को उसी जगह पर ला कर रखती जहाँ वो बच्चियों को अपनी गलीज नज़रों से देखता। वहीं उसको इबरतनाक और ऐसी दिल दहला देने वाली सज़ा भी दे रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि चौकीदार को ज़मीन पर फेंकने के बाद उसके सर से खून निकल रहा था। खून का देखना था कि मैंने खौफ की वजह से वहाँ से भागना मुनासिब समझा। मैं बगैर इधर उधर देखे वहाँ से भागे चले जाना चाहती थी। मुझे अब उस पूरी इमारत पर अनदेखी मखलूक का साया लगता, जो आज तक किसी को नज़र नहीं आई थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे यकीन हो चुका था कि ज़रूर कुछ ऐसी ताकतें थी जो बहुत सालों से इस यतीम खाने में बसी हुई थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये सब पुरस्कार वाक़यात इस वजह से तो नहीं हो रहे कि उस इमारत को 1000 साल पुराने कब्रिस्तान को मसमार करके बनाया गया था, और ज़रूर उस पुराने कब्रिस्तान में किसी की बहुत पुरानी अनदेखी मखलूक का बसेरा था। आज ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब उसी की वजह से था। ये ख्याल आते ही खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। अगले दिन एक और खौफनाक इंकशाफ ने मेरी रूह को लर्जा दिया। वो खबर ही ऐसी थी। इसका मतलब था कि जो कुछ मैंने रात को देखा वो सच था, एक ऐसी हकीकत थी, और उस पुरस्कार साये ने रात को उस चौकीदार की जान ली थी। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये एक सच था कि उस चौकीदार से सब जान छुड़वाना चाहते थे और उसकी उन गलीज नज़रों से किसी तरह अपने आप को महफूज रखना चाहते थे। लेकिन जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उस चौकीदार की मौत का वो निहायत दिल दहला देने वाला मंजर था। मैं उस वाक़े से बहुत खौफज़दा होकर रह गई। उस वाक़े ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर डाला। मुझे हर उस जगह से खौफ आने लगा। ऐसे महसूस होता जैसे किसी भी वक्त वो पुरस्कार साया मेरे सामने आएगा या फिर मुझे भी नुकसान पहुंचा बैठेगा। लेकिन मैं ये भूल रही थी कि उस पुरस्कार साये ने एक ऐसे इंसान की जान ली जो निहायत गुनहगार था। वो अपनी ज़िंदगी में न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर डालता, उनको नोच कर अपनी हवस मिटा चुका होता। वो इस हद तक गलीज़ कामों में मुलव्वस हो चुका था कि उसको तो एहसास ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हद तो ये थी कि अब उससे अगला टारगेट उसकी मासूम बच्चियाँ थीं, जिनको सही और गलत इंसान में फ़र्क करना नहीं आता था। बहुत ही आसानी से उस दरिंदे का शिकार हो जाती। लेकिन मैं और मेरी सहेली ज़माने की तलखियाँ झीलते हुए इतनी बाशऊर हो चुकी थी कि हम पहली नज़र में उस चौकीदार की गलीज़ नीयत को भांप गए थे। हर मुमकिन कोशिश की थी उससे बचकर रहने की। उस चौकीदार की मौत का वाक़या भी हल नहीं हो सका और यूँ किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर किसने उसका कत्ल किया था, सिवाय मेरे, जो अपने डर की वजह से इस कदर खौफज़दा हो गई कि किसी को भी कुछ नहीं बता सकी असल हकीकत क्या थी। दिन यूं ही गुजरने लगे और ज़िंदगी अपनी डगर पर आ चुकी थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर से मसरूफ़ हो चुका था और उस चौकीदार की पुरस्कार मौत का मामला वैसे का वैसे ही रहा था। जब कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं था तो कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता था। यहाँ तो असल कातिल अनदेखी मखलूक थी जिसको किसी ने नहीं देखा था। जो जो वक्त गुजरता गया मैं बहुत एहतियात करने लगी
कि मुझसे ज़रा सी भी कोई गलती नहीं हो, वरना मुझे सज़ा के तौर पर उस पुरस्रार और खौफनाक सहन में पूरी रात गुजारना पड़ती, जो कि मैं किसी सूरत नहीं गुजारना चाहती थी। और वजह था मेरा खौफ जो दिन ब दिन बढ़ने लगा। वो अजीब एहसास किसी की मौजूदगी का हर लम्हे मुझे महसूस होने लगा। मैं चलती तो ऐसे लगता है कि कोई कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहा है। अक्सर औक़ात मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगते। उस यतीम खाने में हमें ऐसे ही नहीं रखा गया था, बल्कि हम बहुत सारे कामों के लिए जाते थे। हर बच्चे ने अपने कमरे की सफाई सुथराई, पर्दे बदलना, बेडशीट साफ़ करना, गर्ज के हर काम करना होता। चूँकि एक कमरे में 4 लड़कियां होती थी, तो हम सब ने मुख्तलिफ काम आपस में बांट लिए थे। हर कोई ये काम अपने ज़िम्मे ले लेता था। मेरे ज़िम्मे सारे कमरे की साफ सफाई का काम था। हर हफ्ते के दिन सब लड़कियां अपने अपने काम में लग जाती। जब मेरा कमरा साफ़ करने की बारी आती, तो मैं जब झाड़ू लेने बाहर जाती तो वापस आने पर मुझे कमरा शीशे की तरह साफ़ सुथरा मालूम होता। ये एक निहायत ही हैरत अंगेज़ बात थी। मुझे लगा कि मेरी किसी सहेली ने शायद मदद की, घर से जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया हो। मुझे उस पर टूट कर प्यार आया। एक मेरी ज़िंदगी में वाहिद हमदर्द सहेली ही थी जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। जब मेरी सहेली वापस कमरे में आई तो मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगी कि उसने मेरी मदद की, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत खौफ में बदल गई जब उसने कहा कि सफाई उसने नहीं की, वो तो अपने काम से बाहर गई हुई थी। जब बाकी की लड़कियों से पूछा तो उन्होंने भी बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया। किसी को भी कुछ इल्म नहीं था। मुझे अजीब से एहसास ने घेर लिया कि आखिर किसने सारी सफाई कर डाली थी, वो भी इतनी। मैं सोचने लगी कि कहीं वो साया तो नहीं आ गया था जिसने सारी सफाई की थी। इस सोच के आते ही मैं कांपने लगी। मुझे डर लगने लगा कि उसने मुझे कोई भी तकलीफ पहुंचा दी। अगर उस जिन के गज़ब का एक रूप मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, अब मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी दोबारा उसे ऐसा कुछ भी देखने की। लेकिन मैं अनजान थी, अभी आगे जाकर आइंदा ज़िंदगी में बहुत सारे खौफनाक वाक़यात देखने थे जो मेरी ज़िंदगी को बहुत अलग मोड़ देने वाले थे। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात वो पुरस्रार सेब जो मैंने खाए थे वो मेरा कोई ख्वाब या फिर वहम नहीं था, बल्कि उस 100 साल पुराने जिन की तरफ से दिया गया एक जिन्नाती फल था। वो एक ऐसा फल था जिसको खा लेने से एक निहायत ही दिल दहला देने वाले जिन का साया हमेशा मेरे साथ रहने वाला था। वो जिन दर हकीकत एक मुसलमान जिन था जो उस इलाके में मौजूद हज़ारों साल पुराने कब्रिस्तान में रहा करता था। अल्लाह की इबादत करना और ऐसे लोगों की मदद करना जो मुसीबत में हों और परेशान हों, तो अल्लाह के हुक्म पर उनका साथ देता, और जो लोग इस दुनिया में मासूम लोगों को तकलीफ़ देते उनको तड़पा कर सुकून हासिल करता, उनको ये इबरतनाक सज़ा दिया करता। अगर कोई मुसलमान भी ख़ता करता तो उसको सीधे रास्ते पर लाना वो अपने तरीके से किया करता। इन कामों के लिए उसके पास बेशुमार कुदरती ताकतें थी, और ये ऐसी पुरस्रार ताकतें थी जिनको अगर कोई इंसान देख लेता तो उसकी रूह कांप उठती। एक रोज़ मैं अपने ज़रूरी काम से जो हमारे ज़िम्मे उस यतीम खाने की इंतज़ामिया ने लगाए थे वो पूरे करके कमरे में आई तो मुझे अपने कमरे की खिड़की से किसी का ह्योला दिखाई दिया। वो शाम का वक्त था। मैं समझी कि शायद मेरा वहम था या दिन भर की थकावट की वजह से मुझे ऐसे ही कुछ नज़र आया होगा। मैं आकर बेड पर बैठने लगी, लेकिन अचानक ही मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। मैं एकदम से अपनी जगह से उठी और खिड़की की तरफ आ गई। हमारे कमरे की खिड़की से बाहर सहन का मंजर साफ दिखाई देता। बिल्कुल सामने ही हमारी वार्डन का कमरा था जो कि सहन पार करके आता। पहले मैं समझी कि शायद वार्डन ने किसी की शामत लगाई हो, क्योंकि हमारी वार्डन की फितरत बन चुकी थी छोटी छोटी बातों पर बच्चियों को सज़ा देना। उनकी सज़ाएं तो बहुत सख्त हुआ करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि कौन सा वक्त है और कहाँ मौजूद है। बस जहाँ कहीं भी हल्की सी किसी ने कोई गलती कर दी होती, उसको सारी रात उस वीराने में रात के अंधेरे में खड़ा किए रखती। अब कुछ अरसा हुआ था कि उन्होंने सब बच्चियों पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। कोई उनसे किसी किस्म की बाज पुर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये डांट इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो बिगड़ जाते हैं, और उस ज़माने में बच्चों को उनके बचपन से ही कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन उस डिसिप्लिन की आड़ में वो अपनी खुद साख्ता नफरत और उन मासूम बच्चियों पर सब निकालती। वक्त के साथ साथ वो बच्चों को डंडे से इस कदर बुरा पीटती कि उनके ज़ख्मों से खून बहने लगता। वो तकलीफ़ की शिद्दत से ज़ारों कतार रोने लग जाते।
लेकिन जब इस जालिम दुनिया में उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने वाला कोई नहीं था, उन सब के वालिदैन भी मेरे ही वालिदैन की तरह या तो उन मासूम फूलों से अपनी जान छुड़वा चुके थे, उन्हें उस यतीम खाने में फेंक कर, या फिर इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। वो मासूम इसी तरह सारी रात दर्द से तड़पते रहते, लेकिन कोई उनकी आहो पुकार सुनने वाला ना था। सब बच्चे उस वार्डन से बेहद खौफजदा रहने लगे। ये जुल्म जो वो कर रही थी अब हद से बढ़ रहा था। कोई मदद करने वाला नहीं था सिवाय उस रब की ज़ात के जो मेहरबान है और सब कुछ देख रहा है और जानता है। उससे खुद भी पोशीदा नहीं है, वो भी मदद करने वाला है, और यकीनन उन मासूम बच्चों की मदद के लिए अल्लाह ने किसी को भेज दिया था जो उस वार्डन को ऐसी सज़ा देने वाला था कि दोबारा उसके पास मारने के लिए हाथ ही बाकी न रहते। मैं अभी खिड़की के पास खड़ी देख रही थी कि अचानक से मुझे फिर से किसी का साया नजर आया। मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाकर देख लेना चाहिए, शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। लेकिन मैं बेखबर थी कि जो मंजर कुछ देर बाद मेरी आंखें देखने वाली थी वो मुझे इस कदर खौफज़दा करके रख देने वाला था कि मैं अपनी जगह से हिलने के काबिल भी नहीं रहूँगी। जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं वार्डन के कमरे की पिछली तरफ आहिस्ता से जाने लगी। रात के वक्त यूं अकेले निकलने पर मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा था, क्योंकि उसी रात के अंधेरे में मैंने बहुत सारे ऐसे खौफनाक वाक़यात देखे थे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मौजूद है। मैंने दीवार की ओट में छुप कर देखने की कोशिश की, और ये देखकर मेरी आंखें खौफ से बाहर को उबल पड़ी। मैंने अपनी बेसाख्ता निकलने वाली चीख को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ सख्ती से जमा लिए ताकि कोई भी मेरी आवाज़ न सुन ले। सामने का मंजर ही इस कदर दिल को लर्जा देने वाला था। मेरी ऐन सामने ही वार्डन ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसके हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए थे। हवा में एक डंडा था, ऐसे लगता जैसे किसी अनदेखी मखलूक ने वो डंडा पकड़ा हो। अचानक वो डंडा हवा में घूमता और ज़ोरदार ज़रब लगती उस वार्डन के हाथों पर, जिसकी वजह से वो चीखने के लिए अपना मुंह खोलती, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज़ नहीं निकल सक रही थी। उसके मुंह से बस गूं गां की अजीब व गरीब आवाज़ें निकल रही थी। साथ में कुछ झाग नुमा चीज़ थी जो उसके मुंह से निकलती हुई ज़मीन पर गिर रही थी। उस वार्डन की तकलीफ़ और अजियत उसके चेहरे से वाज़ेह थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकती थी और अपना दर्द लेकर उधर ही तड़प रही थी। ये इंसाफ था उस रब की तरफ से जो उसने एक जिन को वसीला बनाया ताकि वो उसकी मखलूक की मदद करे और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाए। उस जिन ने वार्डन को मार मार कर इस कदर बेहाल कर दिया कि वो सारी उम्र किसी पर हाथ उठाने की काबिल नहीं रही और उसी खौफ से ही जीने वाली थी कि उसको एक अनदेखी पुरअसरार मखलूक ने इस कदर पीटा कि दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से झाग निकलने लगी थी। मैं उसी खौफ के ज़ेरे असर वापस कमरे की तरफ भाग गई। मेरे दिल की रफ्तार धुंकने की तरह तेज़ चल रही थी। सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था, चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ चुका था। मुझे आज इस बात पर यकीन हो गया था कि जो कुछ मैं महसूस करती हूँ कि हर वक्त कोई अनदेखी मखलूक का मेरे साथ होना, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, कभी खुद ब खुद मेरे काम हो जाते, तो कभी मैं भूखी होती तो अचानक किसी न किसी पुरअसरार तरीके से मुझ तक खुद ही खाना पहुँच जाता। जब कोई भी बच्चा किसी मुसीबत में होता या उस पर जुल्म इस कदर बढ़ जाता कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं जान बचा सकता, तो अचानक कुछ ऐसा होता कि वो जालिम या तो खुद ख़त्म हो जाता या फिर उसको ऐसी भयानक सज़ा दी जाती कि वो सारी उम्र इसी खौफ में गुजार देता। मैं उन पे दरपे हुए होलनाक वाक़यात जिन्होंने मुझे हिला कर रख दिया था, उनसे अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में रहने के लिए अब रोज़ कुरान की तिलावत किया करती। रोज़ का ये मामूल बना लेने से मुझे एक सुकून का एहसास होता। वो पुरअसरार एहसास जो कुछ सालों से मेरे साथ जोंक की तरह चिमट कर रह गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। मुझे अपना आप हल्का फुल्का लगता। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, उसकी तिलावत हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है। उसमें हमारे दीनी और अखरवी फ़वाइद के साथ हमारी हिफाजत भी होती है, इसलिए हमारे दिल को सुकून मैसर आता है। उस कुरान में अल्लाह ने एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसका नाम सूरह जिन है। उसमें साफ दर्ज है कि जिन्नात और अनदेखी मखलूक इस दुनिया में मौजूद हैं और वो हमारे बीच में ही पाई जाती हैं।
बस अल्लाह ने उनके और इंसानों के दरमियान एक पर्दा रख दिया है जिसकी वजह से हम इंसान उनको नहीं देख सकते। वो आतिशी मखलूक जिसको अल्लाह ने आग से बनाया है, उसमें कुदरत की तरफ से ऐसी ताकतें और पुरस्कार कुव्वतें मौजूद हैं जो इंसानों के लिए हरगिज़ आम नहीं है। अगर कोई इंसान उनको देख ले या फिर किसी पुरस्कार ताकत के किए जाने वाले अमल को अपनी आंखों से देख ले, खौफ की वजह से लरज उठे, ये सब देखना काम इंसान के बस की बिल्कुल बात नहीं। जो लोग इस्लाम के दायरे से बाहर हैं वो यकीनन अनदेखी मखलूकात पर यकीन नहीं रखते, लेकिन झुटला देने से भी कोई बदला नहीं जा सकता। जिन्नात की मौजूदगी एक अटल हकीकत है जिसको सब इंसानों ने मानना है। मैंने जब सूरह जिन के बारे में तफसील से पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। तो यानी जो कुछ मुझे महसूस होता था और जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो सब जिन्नात ने किया था, और मैं समझती थी कि सब किसी काली ताकत या फिर अनदेखे साए की वजह से ऐसा था। मैं खौफज़दा होने लगी। ये खौफ अब मुकम्मल अपनी लपेट में ले चुका था। अब मैं रोज़ तिलावत कुरान पाक करती और ख़ास तौर पर सूरह जिन की तिलावत भी करती। उस इमारत में ज़रूर किसी जिन का साया था। अल्लाह के कलाम से बढ़कर हिफाजत कोई नहीं कर सकता था। उन्हीं दिनों की बात थी कि आहिस्ता आहिस्ता हम रमज़ान के महीने की तरफ जाने लगे। उस बाबरकत महीने में सब बच्चियां मिलकर रोज़े रखती और खूब ढेर सारी दुआएं मांगती। हमें सहरी और इफ्तारी के लिए बस एक सूखी रोटी और सालन की प्लेट होती। हर बच्चे को उसकी बारी के हिसाब से खाना दिया जाता। एक तवील कतार बनाई जाती और सब उसमें खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार किया करते। मैं भी बाकी सब बच्चों की तरह लाइन में खड़ी हो जाती। रोज़े की हालत में इतनी देर खड़ी रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करना इंतहाई मुश्किल काम था, और यहाँ की इंतज़ामिया रमज़ान के बाबरकत महीने में भी मासूम बच्चियों के लिए कोई एहतमाम नहीं करते। सब एक रोटी और सालन की प्लेट पर ही सब्र शुगर करके अफ्तार किया करते। हर साल हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए उस यतीम खाने को रमज़ान के महीने में दिए जाते ताकि उन मासूम बच्चों की रोज़ा खुलाई भरपूर तरीके से की जाए। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया सारा माल अपने ज़ाती ख़जानों में भर लेती और उन मासूम बच्चों का हक बड़ी सफाई के साथ खा जाते, और कोई उनको पूछने वाला नहीं था। ये लोग हराम का माल खाकर अपनी दुनिया और आखिरत खुद ही ख़राब किए जा रहे थे, और उनको एहसास तक नहीं था कि कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे। इस तरह सब्र शुक्र करके रमज़ान अल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला था। आज आखिरी रोज़ा था। सब बच्चे ईद को लेकर खुश थे और ये खुशी उनके मासूम चेहरों से वाज़े दिखाई दे रही थी। आज अफ्तारी के वक्त वाज़े हलचल थी। लोग जल्द अज जल्द अपना खाना लेकर आराम से बैठकर खाने की तगदू में थे। उसी धक्कम पेल में हर कोई खाना लेकर जा रहा था। सब बच्चे रोज़े ख़त्म होने और ईद को लेकर काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। मुझे आज सुबह से ही अपनी तबीयत में कमज़ोरी महसूस हो रही थी, और वजह थी भूख जिसने मेरी हालत ख़राब कर दी। ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ाना रोज़े की हालत में ऐसी होती, लेकिन आज दिन भर काम करने और अपने कमरे की साफ़ सुथराई की वजह से सारा दिन थकावट महसूस करती। अब लाइन में खड़ा होते हुए मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। बिलाखिर मेरी बारी आई और मैं खाना लेने की गर्ज से आगे बढ़ी। हर कोई एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की तगदू करना चाह रहा था। जब मैंने आगे बढ़कर खाना खा लिया और जाने लगी तो अचानक पीछे से किसी बच्चे ने मुझे बेध्यानी में धक्का दिया और मेरे हाथ में मौजूद सारा खाना ज़मीन बोस हो गया। सालन की प्लेट और रोटी ज़मीन बोस हो चुकी थी। मेरी आंखें ये देखकर दुख के एहसास से नम हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। भूख प्यास से मेरी हालत पहले ही ख़राब थी, और अभी ये खाना जो इतने लंबे इंतज़ार के बाद इतनी मुश्किल से हासिल होता वो भी गिर चुका था। मैं खामोशी से जाकर अपने कमरे में गई और अल्लाह का जिक्र करने लगी। अफ्तार के वक्त में आधा घंटा बाकी था भी सब लोग बाहर बिछाए गए दस्तरखान पर बैठकर अपने लिए दुआ मांगने लगे। मैं भी कुरान लेकर आई और तिलावत शुरू की। मेरा चेहरा थकावट की वजह से जर्द हो गया था। भूख प्यास से निढाल हो गई। ऐसी बेबसी महसूस करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेसाख्ता रब को पुकार बैठी, जो राज़िक है वही है, जो सबको रिज़्क अता करता है। वो जिसे चाहे अता करे, जिससे चाहे छीन ले, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। अचानक बाहर से बादल गरजने लगे। बिजली कड़की। बिजली की आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि मैंने कानों पर हाथ रख लिए। हर तरफ खौफ व हरास फैलने लगा। मुझे अचानक से ऐसे महसूस हुआ जैसे हर तरफ कुछ गैर मामूली सा एहसास हो। मुझे फिर से उस जिन की मौजूदगी महसूस होने लगी।
خوف سے میرے اوپر کپکپی طاری ہونے لگی۔ بھوک اور پیاس کے ساتھ اب میرے اوپر خوف کا احساس بھی حاوی ہونے لگا۔ میرے ذہن میں اچانک سورہ جن کا خیال آیا۔ یہ خیال خود سے نہیں آیا بلکہ قدرت کی طرف سے لایا گیا تھا۔ میرے کمرے کے پردے ہوا سے لہرانے لگے۔ یہ ہوا موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جن کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ گویا اعلان کر رہی ہو کہ یہاں اس وقت کمرے میں وہ 1000 سال پرانا جن آ چکا ہے، وہ جن جس کو قدرت نے انسان کی خدمت کے لیے مامور کیا تھا۔ میں نے ہر احساس سے عاری ہو کر سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ میں وہ سورت پڑھتی جا رہی تھی اور زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ہر طرف جیسے ایک سکوت چھا گیا۔ میرے دل میں جو خوف و ہراس تھا رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ میرا دل مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہ سب میرے اللہ کی مہربانی تھی۔ اچانک میں جو آنکھوں کو بند کر کے سورت کو پڑھنے کے بعد دعا میں مصروف تھی، ایک دم سے کمرے میں اجالا ہو جانے کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی۔ میری یہ دیکھ کر حیرت کے مارے چیخ نکل گئی کہ اس چھت پر موجود روشنی کے اندر سے ایک بڑا سا ڈبہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اس ڈبے کو ایک بڑے سے سرخ رنگ کے رومال میں لپیٹا گیا تھا۔ میں خوف اور حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ وہ ڈبہ عین میرے سامنے زمین پر رکھ دیا گیا۔ ڈبے کے زمین پر رکھتے ہی وہ پراسرار روشنی غائب ہو گئی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اپنی دعا مانگ چکی تھی۔ روزہ افطار کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے تجسس اور ڈر کے مارے اس پراسرار ڈبے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم بہت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہت آرام سے میں ڈبے کے قریب بیٹھی، احتیاط کے ساتھ اس ڈبے کے اوپر وہ سرخ کپڑا ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھائے جو کہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگے تھے۔ بہت ہمت کر کے بالآخر میں نے وہ سرخ کپڑے کی گرہ کو کھولا جس کی وجہ سے وہ ڈبہ میرے سامنے تھا۔ میں نے آہستہ سے اس ڈبے کو کھولنا شروع کیا۔ میری زبان پر اس پراسرار ڈبے کو کھولتے وقت اللہ کا کلام جاری تھا۔ میرا خوف اس کلام سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں نے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں سے خوشبو کا ایک ریلا سا میری ناک سے ٹکرایا۔ ایسے لگا کہ انتہا کے دل کو بہا جانے والی کھانے کی خوشبو تھی۔ میں نے ایسی کھانے کی خوشبو ساری زندگی نہیں سونگھی تھی۔ ڈبہ کھولتے انواع اقسام کے کھانے موجود تھے۔ ایسی کوئی ڈش نہیں تھی جو اس بڑے سے ڈبے میں موجود نہ ہوتی۔ ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کا مشروب اس ڈبے میں موجود تھا۔ اس کھانے کو دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ کیا دعائیں اس طرح بھی قبول کی جاتی ہیں؟ آج میں روزے کی حالت میں اس قدر تھکاوٹ کے باوجود کھانا لینے کے لیے کھڑی رہی تھی، اور وہ حاصل کر لینے کے بعد بھی لا حاصل رہی۔ بھوک اور پیاس سے کمرے میں خاموشی آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ اس کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد وہ پراسرار مخلوق کی موجودگی اور اس کا احساس، اس خوف کا احساس جس کے بعد بھی میں ثابت قدم رہی اور اپنے اللہ کو یاد کرتی رہی، جس کے انعام کے طور پر اللہ نے میرے لیے آج یہ خاص دسترخوان بھیجا تھا اور وسیلہ بنایا تھا ایک جن کو، ایک ایسی اندیکھی مخلوق جو کسی انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا احساس بہت سالوں سے ہو چکا تھا۔ اب بھی محسوس ہوتا، لیکن اس کے خوف کے ساتھ تاحال میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ یہ اندیکھی مخلوق موجود ہے اور برحق ہے۔ ہر آتشی مخلوق کے پاس قدرت کی طرف سے بے شمار طاقتیں موجود ہوتی ہیں جن کا کچھ جنات غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوف اور دہشت پھیل جاتا ہے۔ اس طرح کچھ جنات اپنی طاقت کا استعمال درست طریقے سے اپنی حدود میں رہ کر کرتے ہیں اور انسانوں اور جنات کے درمیان موجود پردے کو ہرگز پار نہیں کرتے۔ اس طرح ہر طرف امن قائم رہتا ہے اور انسان خوفزدہ ہرگز نہیں ہوتے۔ اس طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کچھ غیر فطری اعمال اور جادو گنڈا کر کے انہیں جنات کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے معصوم لوگوں کی زندگی عذاب بنا ڈالتے ہیں۔ اس یتیم خانے میں موجود 1000 سال پرانے اس جن کو بھی قدرت نے انسانیت کی خدمت کے لیے ہی مامور کیا تھا۔ آج تک جتنی دفعے بھی اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو اس انداز سے کہ اس میں کسی بے قصور کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، پر چاہے وہ غلیظ چوکیدار ہو یا پھر وہ اپنی خود ساختہ نفرت میں مبتلا وارڈن ہو، میں ہمیشہ بس اس پراسرار احساس کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر دل تھام لیتی۔ دل کی دھڑکن حد سے بڑھ جاتی۔ اس لذیذ ترین اور انواع اقسام کے کھانے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں تشکر کے احساس سے آنسو آ گئے۔
میرا سر بے ساختہ اللہ کے حضور سجدے میں جھک گیا۔ اپنے اللہ کی میں بے تحاشا شکر گزار تھی جس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اپنے رب کا نام لے کر میں پہلا لقمہ کھانے کا لے چکی تھی۔ اس کا ذائقہ اس قدر لذیذ تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ کھانا جنات کے شاہی دسترخوان میں سب سے اعلیٰ اور لذیذ خوراک تھی۔ رمضان کا آخری روزہ اس شاہی انداز میں کھولا گیا کہ میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پراسرار جن اب بھی یہیں کہیں موجود تھا، لیکن ایک پردے میں تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ انسان اور جن میں جو پردہ اللہ نے بنا رکھا ہے اس کو برقرار رکھنا ان کا کام ہے۔ یہ سایہ ہمیشہ اسی طرح میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔